हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुपर ग्रेड्स। अलजेब्रा फॉर कैट सीरीज में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लॉगरिदम के। और अगर हम देखें लास्ट 3 इयर्स में लॉगरिदम के 7 क्वेश्चंस आए हैं। कैट 2021, कैट 2022 और कैट 2023। 7 क्वेश्चंस इन 9 स्लॉट्स। तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि हर स्लॉट में लॉगरिदम का एक क्वेश्चन आ रहा है। तो ये एक छोटा सा पार्ट है अलजेब्रा का, और अलजेब्रा एक छोटा सा पार्ट है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो यू कैन सी कि लॉगरिदम के क्वेश्चन ऑलमोस्ट सर्टेन है हर स्लॉट में। और जैसा हमने प्रीवियस सेशन में देखा था, लॉगरिदम का एक और सेशन मैंने लिया है जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। जो फॉर्मूले हैं, ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बेस्ड ऑन लॉगरिदम वी आर डिस्कस्ड। और कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस किया था लॉगरिदम के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझने के लिए। आज हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस लास्ट 3 इयर्स क्वेश्चंस फ्रॉम लॉगरिदम। As we move forward, first let's revise those formulae once again based on logarithm. So first, log 1 base a is equal to 0. Second, log a base a is equal to 1. Third was log m plus log n. This was equal to log m into n. Then log m minus log n. This was equal to log m upon n. Then comes log m to the power n to the base a. This will be equal to n log m to the base a. Next one was log a log m to the base a to the power b. Now power is on base here, then this will be equal to 1 by p log m to the base a. Now if we merge 0.5 and 0.6, then we can write it something like log m to the power n to the base a to the power p. This can be written as n by p log m base a directly. Okay. Next point was log b base a was equal to log b upon log a. We also discussed that the base should be anything common, same base, right? Then we can also write it log b base a can be written as 1 by log a to the base b. Point 10 was a to the power log b base a. This will be equal to b. And there was another point which was a to the power log b base c will be equal to b to the power log a base c. Means a and b are interchangeable. We can interchange their positions, है ना? तो ये सारे फॉर्मूले थे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट था लॉगरिदम का। वो क्या था? दैट वाज if a to the power n is equal to x, then we get log x to the base a is equal to n. And from here we can say that if this is given, so we can also write this. So if this one is given, we can use this. If this one is given, we can use this. Just interchange the position of x and n. All right. Now let's move on to our first question from CAT 2023. Okay. What you can do, you can take some time, you can pause this video and try to solve it and then check the solution. All right. Now it says if x and y are positive real numbers such that log x square plus 12 base x
is equal to 4 and 3 times log x base y is equal to 1, then x plus y equals, what is the value of x plus y? So सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं. क्या हम इसे लिख सकते हैं, x to the power 4 will be equal to x square plus 12, or we can write it x to the power 4 minus x square minus 12 is equal to 0. Then अब इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, है ना. 12 can be written as 4 into 3. So we can write it as minus 4x square plus 3x square minus 12 is equal to 0. और यहां से x स्क्वायर अगर कॉमन लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 आता है, प्लस 3 लें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 0. Now we can take x square minus 4 common and we get x square plus 3 is equal to 0. From there we get x square is equal to 4 or x square is equal to minus 3. So this one is not possible, right? This is possible, and from there we can say x square is equal to plus 2 or minus 2. But if you take x square, not x square, it will be x. Okay, so this will only be x, not x square. So x will be equal to plus 2 or minus 2. But you can see our base is x here, and x can never be negative. So we will take only this value. This value is not applicable here. So we got x is equal to 2. Now we can write this 3 times log x base y is equal to 1, or we can say log, this is 2 base y cube is equal to 1. So now we can interchange their position, right? So we can say y to the power 1 will be equal to 2 cube. That is nothing but 8. What we need to find? We need to find what is the value of x plus y. Then x plus y equals, x plus y will be equal to 2 plus 8, which is equal to 10. You can see कुछ भी यहाँ out of the box नहीं था. हमें अगर बेसिक कॉन्सेप्ट पता है तो लॉगरिथम के क्वेश्चन बहुत ही इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं. Now next question is again from CAT 2023 slot 2. It says for some positive real number x, if log x base root 3 plus log 25 base x and log 0.008 base x is equal to 16 by 3, then value of log 3x square base 3 is. तो देखो यहाँ पे हम बहुत ही इजीली इस टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. कैसे? एक चीज हमने सीखा था क्या, कि log b base c divided by log a base c can be written as log b base a, right? So if we are talking about only this term, अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, इसे क्या लिख सकते हैं, log 25 to the base 0.008. Now what is 0.008? अगर हम इसकी बात करें, 0.008 will be 8 upon 1000. That is nothing but 1 by 125. And 1 by 125 is nothing but 5 to the power minus 3. So we can write this term as log 5 square to the base 5 to the power minus 3. है ना? Now this can be written as, अभी हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला, this can be written as log 5 base 5 into minus 2 by 3. Now log a base a is equal to 1, so this will be minus 2 by 3. So we can write this value as minus 2 by 3. Now if you solve this, क्या आता है देखते हैं. Log x base root 3 minus 2 by 3 is equal to 16 by 3, right? So from there we can write log x base root 3 will be equal to 16 by 3 plus 2 by 3. That will become 18 by 3, and that is nothing but 6. Now interchange their position, so it will be root 3 to the power 6 will be equal to x, or we can say x will be equal to, so this is square root, right? Square root is nothing but equivalent to power 1 by 2. So 6 by 2 will be equal to 3. So x will be equal to 3 cube. This is
we got value of x. Now what we need to find? We need to find log base 3, 3x square. You know? So this can be written as log 3x square. See, x square will be equal to 3 to the power 6. So 3 into 3 to the power 6 will become 3 to the power 7. 3 to the power base 3. 3 to the power 7 base 3 will be equal to 7 times log 3 base 3. This is nothing but 7. Because log 3 base 3 will be 1. ठीक है? तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी क्लियर है ना? Now next question, question number 3, again CAT 2023. This question is a little tricky, a little difficult than rest of the questions. और आपको जैसे पता होगा CAT 2023 का जो क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का लेवल था वो प्रीवियस कई सालों से ज्यादा डिफिकल्ट था, है ना? एंड ये उन क्वेश्चन में से है जो इस बात को प्रूव करता है. It says for a real number x, if 1 by 2 log 2 to the power x minus 9 divided by log 4 base 3 and log 2 to the power x plus 17 by 2 base 5 divided by log 4 base 5 are in an arithmetic progression, then the common difference is, so there are three terms, वो AP में है. क्या जानते हैं हम AP के बारे में? If A, B, and C are in AP, then the first thing that comes to mind is A plus B must be equal to 2C. No, that is wrong. It should be A plus C is equal to 2B. A plus C should be equal to 2B. Now, it's mentioned here that they are in AP, so we must use this one. But before we use this one, we can simplify these two terms. As you can see here, base is 3 here, so we can cancel this out. Base is 5 here in both the cases, right? Again, log B base C divided by log A base C will be equal to log B base A. So बार बार सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो यहां पे अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, हम क्या कह सकते हैं? 1/2 ये बन जाएगा क्या? log 2 to the power x minus 9 base 4 and log 2 to the power x plus 17/2 base 4. These three are in AP, right? ये तीनों AP में हैं. तो क्या हम कह सकते हैं, क्या हम इसे भी लिख सकते हैं ऐसा इसके टर्म में, चूंकि बेस 4 है? अगर बेस 4 है तो ऐसी क्या वैल्यू यहां पे ले हम कि वो हाफ बन जाए? log, let's say log m base 4 is equal to 1/2. क्या हम कह सकते हैं m will be equal to 4 to the power 1/2 which is equal to 2. So we can say that this will be, इसे हम क्या लिख सकते हैं? log 2 base 4, ये आ गया log 2 to the power x minus 9 log 4, और ये आ गया क्या? log 2 to the power x plus 17/2 base 4. ये तीनों क्या है? These three are in AP. Now we can use it. We can take these two together. We can use this concept that A plus C is equal to 2B. So add these two. So again, log m plus log n is equal to log m into m. So this into this. So 2 times, from there we can say 2 times 2 to the power x plus 17/2 will be equal to 2 times 2x minus 9, है ना? A plus C will be equal to 2 times B. Now A plus log this, these two will be multiplied. So now what we can say, we can simply cancel this out, this 2, right? 2 to the power x minus 9. No, थोड़ी सी यहां पे कुछ मिस्टेक हुई है. लेट मी चेक. यहां पे अगर हम इसे लिखें log 2 base 4
plus log 2 to the power x plus 17 by 2 base 4. This should be equal to 2 times log 2 to the power x minus 9 base 4. Okay, so now this can be written as log 2 times 2x plus 17 by 2 divided by 4, and this will be equal to, now we can write this as log 2 to the power x minus 9 whole square base 4, ऐसा लिख सकते हैं ना. Now we can compare that these two are equal, है ना, these two are equal because base is equal. So let's try to write it down here. Let's try to solve it here. So we can write this as 2 into 2 to the power x plus 17 by 2 will be equal to 2 to the power x minus 9 whole square. Now we can assume that y is equal to 2 to the power x. So how do we solve this? We can take 2 into y plus 17 by 2 will be equal to y minus 9 whole square. तो यहां से ये आ जाएगा 2y प्लस 17 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81. आगे अगर इसे सॉल्व करें वाई स्क्वायर माइनस 20y and this will also be plus 64 is equal to 0, or we can say now 64 is nothing but 16 into 4, है ना, 64 is nothing but 16 into 4. So y square minus 16y minus 4y plus 64 is equal to 0, and this can be written as y minus 16 into y minus 4 is equal to 0. तो यहां से हम ले सकते हैं y is equal to 16 और 4, और y है क्या, y is nothing but 2 to the power x. So we can say 2 to the power x is equal to 16 और 4. तो यहां से x की दो वैल्यू आती है, x is equal to 4 और x is equal to 2. दो वैल्यू तो आ गई x की, है ना. We can take x is equal to 4 और we can take x is equal to 2. बट अब यहाँ पे एक बहुत ही समझने वाली चीज है, लास्ट सेशन में भी मैंने मेंशन किया था कि जब भी आपको कुछ सॉल्यूशन मिलता है क्या करना है, हमें हमें चेक करना है कि क्या वो वैलिड है, क्या लॉगरिदम में ये वैल्यूज वैलिड है. तो देखो अगर यहाँ पे 2 टू द पावर x जो है, जो कि y, अगर यहाँ पे हम 4 रख दें, 4 माइनस 9 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. 4 माइनस 9 क्या होगा, नेगेटिव, विच इज माइनस 5. सो ये पॉसिबल नहीं है. So x is equal to 2 is not possible. We will have to go with x is equal to 4. अगर x is equal to 4 है तो अब हमें चेक करना है कि कॉमन डिफरेंस क्या है. कॉमन डिफरेंस कहां से निकाल सकते हैं हम, टू कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस. सो ये जो टर्म है ये क्या है, दिस टर्म इज log 2 to the power x minus 9 to the base 4 माइनस दिस इज 1 by 2. तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस विल बी आवर कॉमन डिफरेंस d, है ना. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज. log, if you put 2 to the power x is equal to 4, this will become 16 minus 9, so this will become 7 log 7 base 4, and this will be, again we can write this as log 2 to the base 4. So log m minus log n is equal to log m minus n, log m by n base 4. So if you check the option, option C is log 7 by 2 base 4. So as you can see, this question was not difficult, but it was lengthy. It was very time taking. It took me at least 5 to 6 minutes solving on this board. Although थोड़ा सा अगर पेज पे सॉल्व करते थोड़ा सा टाइम कम लगता, 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट, बट 2 से 3 मिनट, 3 मिनट तो एटलीस्ट कहीं नहीं जा रहे, कितने भी फास्ट आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को. सो ऐसे ही क्वेश्चन से भरा पड़ा था कैट 2023, और हमें भी वर्स्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए कि कैट 2024 भी
ऐसा हो सकता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, एंड सो दैट जो भी क्वांट की प्रैक्टिस है वो अच्छे ढंग से करनी चाहिए। एकदम जो कंटेंट आप ऐसा चूज करो जो कि अप टू द लेवल हो। इजी कंटेंट, ओल्ड कंटेंट, वो सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो पुराने ढर्रों पे था, सारे क्वेश्चंस नए पैटर्न थे। सो नए कंटेंट, थोड़े से डिफिकल्ट कंटेंट सॉल्व करने पे हम फोकस करेंगे। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रॉम कैट 2022. It says the number of distinct integer values of n satisfying 4 minus log n to the base 2 upon 3 minus log n to the base 4 is less than 0. This one is extra, this log is extra. So how do we solve? What do we say? If whenever we say a by b is less than 0, what can we say? That a is positive and b is negative, or we can say a is negative, b is positive. यही ना, दो केसेस होंगे। तो अगर हम इन केसेस को चेक करें, देखो, अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम 16 लेते हैं तो log n, log 16 base 2, 16 is nothing but 2 to the power 4, so this will be equal to 4. तो क्या कह सकते हैं कि जो ऊपर वाला टर्म है, जो a है मेरा, that will always be positive if n is greater than, फर्स्ट केस लेते हैं, n is greater than 16 होगा तो ये पॉजिटिव होगा। और सेकेंड केस में अगर हम 3 माइनस लॉग एन बेस 4 की बात करें तो लॉग 4 इंटू 4 इंटू 4, सो लॉग 64 बेस 3 अगर होगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 माइनस 3 इज 0। सो एनी वैल्यू ऑफ n विच इज ग्रेटर देन 64 विल गिव अस पॉजिटिव वैल्यू, बट हमें क्या चाहिए? नेगेटिव। तो n शुड बी लेस देन 64। न्यूमरेटर पॉजिटिव, उसके लिए n ग्रेटर देन 64 होना चाहिए। डिनोमिनेटर नेगेटिव, उसके लिए n लेस देन 64 होना चाहिए। दैट मीन्स जो n की वैल्यू है दैट विल बी 17, 18 टिल 63। सो हाउ मेनी वैल्यूज? Total 63 minus 16, which is equal to 47 values we are getting here. Apart from that, अगर second condition लें where a is negative, a is negative and b is positive, a negative कब होगा? When n is less than 16, and b positive कब होगा? When n is greater than 64. Now n is less than 16, in second case n is greater than 64. ये कंडीशन कुछ भी मैच नहीं खा रही, कुछ भी कॉमन नहीं है इनके वैल्यूज में, है ना? सो दिस कंडीशन इज नॉट applicable here. So only first case is applicable, and the answer is 47. All right, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ना ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब सॉल्व करने का जो मेथड इस केस में बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैसे वो देखते हैं। अगर हम बात करें कि सीधा इसी को सिंप्लीफाई करके आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो थोड़ा सा लेंथी सा और थोड़ा सा रफ वर्क सा दिखता है। तो मैंने क्या सोचा यहाँ पे कि अगर मैं कुछ ऐसा ले लूं कि log 1 बाय, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि log स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, अगर इसी को मैं कुछ एज्यूम कर लूं तो काफी इजी हो जाता है सॉल्व करना। जैसे कि हम ले सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू अगर हम a मान लें, एंड स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस एक्स की वैल्यू अगर b ले लें, क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विल बिकम दिस इंटू दिस, है ना? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सो दिस विल बिकम a इंटू बी। अब इसे हम लिख लेते हैं, तो क्या लिख सकते हैं इसे? 5 minus log, now we can avoid the base is 10, we can avoid the base, we can write it as log b plus 4 times log a is equal to, now this will be equal to log 1 by ab, है ना? 1 by ab। फ्रॉम देयर अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? 5, ये जो 4 है
इसका हम क्या कर सकते हैं, इस 4 को यहाँ हम पावर में ले जा सकते हैं, तो यहाँ पे प्लस लॉग a⁴ माइनस लॉग b, एंड इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज नथिंग बट लॉग ab⁻−1। तो ये यहाँ पे लेके लिख सकते हैं क्या, प्लस लॉग ab, ऐसा कुछ, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। ये देखो, क्या यहां तक क्लियर है सबको, है ना? दिस शुड बी क्लियर टू दिस शुड बी क्लियर टू यू, राइट? तो चलो आगे देखते हैं, आगे हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। सो ये वैल्यू अगेन यहाँ पे जो अप्लीकेबल होगी वैल्यू, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी प्लस लॉग डी, जब भी हम प्लस में ले रहे हैं तो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाएंगे ए बी सी डी, और जहां भी डिवीजन आएगा क्या हो जाएगा, वैल्यू डिवाइड हो जाएंगे। तो वो चीज हम फिर से यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू लॉग a⁴, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइडेड बाय, ये डिवाइड हो जाएगा, दिस शुड बी इक्वल टू 0, बी इज कैंसिल्ड आउट। अब यहां से क्या कह सकते हैं कि लॉग a⁵ इज इक्वल टू -5, 5 को उधर ले जाओ, बेस क्या है 10 है। अब इसको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो, जैसा मैंने बताया था, लॉग को जब हम रिमूव करेंगे तो 10⁻⁻5 इज इक्वल टू a⁵, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो a⁵ is equal to 10⁻⁻5, so a will be equal to 10⁻⁻1, which is equal to 1/10। ये आ गई मेरी a की वैल्यू, है ना? अगर ये a की वैल्यू आ गई, हमें क्या निकालना है, 100x। अच्छा, a की वैल्यू हमने निकाला, एक बार यहाँ पे रख के देख लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/10। इफ यू टेक स्क्वायर ऑन द बोथ साइड्स, 1/x इज इक्वल टू 1/100, तो यहां से आ जाएगा 100 माइनस 100x इज इक्वल टू 1, और वी कैन से 100x इज इक्वल टू 99। फ्रॉम देयर वी गेट x is equal to 99 upon 100। now what is required, देखो कितनी खूबसूरती से यहाँ पे सीधा निकल के आ रहा है कि जो 100x होगा वो स्ट्रेट अवे 99 हो जाएगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अगेन अगर मैं इसे साथ लेके चलता हूं तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था सॉल्व करने में, हम उलझ के ले सकते थे इन स्क्वायर रूट्स में मल्टीप्लाई करना डिवाइड करना, बट ये यहाँ पे थोड़ा सा जो हमने एज्यूम किया इनकी वैल्यू, एक वेरिएबल को लेके सॉल्व किया, वो काफी इजी हो गया, और लास्ट में सिर्फ और सिर्फ यहां से यहां एक स्टेप हमें वापस करना पड़ा है इसके रिस्पेक्टिव। सो मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेथड कैसे मेथड यूज करने जिससे कि कोई कुछ भी मुश्किल ना हो सॉल्व करने में, है ना? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगेन अगर अगर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, जो बेसिक फॉर्मूले हमने डिस्कस किए, अगर वो पता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो ये दिया हुआ है कि लॉग, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इसकी वैल्यू मुझे दिख रही है, मान लो इसकी वैल्यू कुछ ले लेते हैं y, मुझे दिख रहा है log y बेस 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 इधर ले गए, क्या कह सकते हैं, y विल बी इक्वल टू 4, है ना? यहां से हम क्या कह सकते हैं, y विल बी इक्वल टू 2 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि यहां से यहां अब जो है उसकी वैल्यू क्या है, 4 है, यहां से यहां जो है उसकी वैल्यू क्या है, 4 है। अगर ये 4 है तो 3 को उधर ले जाओ तो 1 बचा। इसका मतलब अब जो मेरे पास है log 3, और ये वैल्यू जो है उसको मान लो z, तो z विल बी इक्वल टू 4 माइनस 3, ये 1 हो जाएगा। अगर ये 1 है, 1 कब होता है, log a बेस a इज इक्वल टू 1। तो देखो फिर से पोजीशन चेंज करो, क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1। z हमने क्या लिया था, 4 प्लस समथिंग, अगर इधर 4 है राइट साइड ले जाओगे क्या होगा, -1 बचेगा। तो अब यहाँ पे बचा log x माइनस 1 बेस 4 इज इक्वल टू -1। फिर से इंटरचेंज कर दो, x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर -1 विच इज 1/4,
यहां से x क्या हो जाएगा 5/4। हमें क्या चाहिए, वी नीड 4x, so 4x will be equal to 5 and that is your answer। कुछ भी लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लंबा खींचने की जरूरत नहीं है इसमें, है ना। देख सकते हो कितनी आसानी से ये सॉल्व हो गया। ठीक है, बस हमने कुछ नहीं देखा, मैंने क्या देखा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 है, यहाँ पे बेस 2 है, इसका मतलब इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए, सीधा, लिखा ही नहीं, है ना। अगर राइट साइड 4 है, यहाँ पे 3 है, 3 को राइट साइड ले जाओ 1 बचा, मतलब इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 है। फिर इसको मैं भूल गया, मैंने देखा बेस क्या है 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू 3 होगी। अगर ये 3 है, 4 यहाँ है, राइट साइड ले जाओ -1 बचा, इसकी वैल्यू -1 है, उसके बाद सॉल्व हो गया, कितनी आसानी से। ठीक है, question number 7, for a real number a, if log a base 15 plus log a base 32 divided by log a base 15 into log a base 32 is equal to 4, then a must lie in the range. So range has been given, we need to find the range for a here. Let's try solving this. तो देखो अगेन एक चीज और है, आपने देखा हो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, अगर कुछ ऐसा है, नहीं ये नहीं है, ये है एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, इसे क्या लिख सकते हैं 1/y प्लस 1/x, ऐसा है ना, x अपॉन एक्स बाय वाई प्लस y अपॉन एक्स वाई, दिस विल बी 1/y प्लस 1/x। वही चीज यहां कर सकते हैं ना, x प्लस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई, से क्या लिख सकते हैं 1/y प्लस 1/x, ये हो जाएगा log a बेस 32 प्लस 1/log a base 50। Again, there was one concept that we discussed, that log b base a is equal to 1/log a base b, है ना। So we can write this as log 32 base a plus log 50 base a, log m plus log n is equal to log m into n, है ना। ये क्या हो जाएगा log 32 into 15 is 480, 480 base a, and all of these values, all of these are equal to 4। what do we get, फिर से इंटरचेंज करो, a to the power 4 is equal to 480। now we need to find the value of a। if we talk about an integer कि a की वैल्यू किन दो इंटीजर के बीच में होगी, 1 to the power 4 is 1, 2 to the power 4 is 16, 3 to the power 4 is 81, 4 to the power 4 is 256, and 5 to the power 5 is 625। So देखो, we can say that 480 comes between 256 and 625। What is 256? 256 is 4 to the power 4. This is 8 to the power 4, and this is 5 to the power 4. So remove the power. What we can say, a will be between 4 and 5. So answer is option A, है ना। So इसी के साथ हमने लास्ट 3 इयर्स कैट में जितने भी लॉगरिथम के क्वेश्चन आए हैं वो हमने डिस्कस कर लिया है। और कहीं ना कहीं आपने फील किया होगा ये चीज कि जो भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया था लास्ट सेशन में, जो भी फॉर्मूले आज मैंने डिस्कस किए, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं था। और ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चन को देख के ये मैंने डिस्कस किया, नहीं, यही यही कॉन्सेप्ट, यही फॉर्मूले में मैं सालों से, मैं 10 सालों से स्टूडेंट्स को बताता आ रहा हूँ, और यही मेथड्स। इसलिए बहुत जरूरी है, जो मैंने कहा था आपको कि कोई भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं उससे पहले एक बार आप पॉज करो वीडियो को, उस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड देन चेक द सॉल्यूशन। देन यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ मच इंपॉर्टेंट अप्रोच इज, दैट विल सेव योर टाइम, दैट विल मेक योर एफिशिएंसी बेटर। ठीक है, सो आई होप दिस सेशन वाज फ्रूटफुल टू यू। इफ यू understood the concept, if you're excited for the next video, press the like button, subscribe the channel, because we are posting videos on cat, all the sections every day. Okay, so see you guys in the next session. Thank you, all the best.